بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. بات دراصل یہ ہے کہ پروگرام کا جو اٹھان ہے وہ سست ہے. کیا پتہ لوگوں کے حص سے لطیف ختم ہو گئی، یا طنز و مزاح سے جان پہچان نہیں رہی، یا بعد کمنٹس دیتے رہیں گے تو ہوتا رہے گا قصہ. اور یہ پروگرام جو ہے یہ لطیفوں کا نہیں ہے، یہ حصہ لطیف کا ہے جس میں ہنسنے کی، مسکراہٹ کی، ہاں ہاں کی بات نہیں. آپ کو اچھا لگے گا تو مسکرا دیجیے گا، ورنہ کمنٹس میں تو ایک نے بھیجا ہے کہ سدا مسکراؤ. میں نے بھیا سدا مسکرانے کے لیے پہلے ابتدا تو کر لو. محترمہ آپ کا شکریہ ہیما صاحبہ کہ آپ نے بڑا اچھا جملہ بولا کہ سدا مسکراتے رہو. جی، سدا مسکرانے کے لیے پہلے مسکرانا ضروری ہوتا ہے. ایک دفعہ آپ مسکرا دیں گے تو پھر آپ کی عادت بھی اچھی ہو جائے گی. تو چلتے ہیں پروگرام کی یعنی، تاکہ یہ بھی اس دفعہ بھی بڑے امید کے ساتھ. صاحب، پاکستان بڑی خوبصورت جگہ ہے. ہر چیز یہاں موجود ہے. دریا ہیں، پہاڑ ہیں، کھیت ہیں، کھلیان ہیں، اور جناب سارے ہیں، اور پھر اتنے قسم کے لوگ ہیں، اور اتنا ہی بھائی چارہ ہے. کئی زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن ہر بولنے والا دوسری زبان والوں کے ساتھ اتنی محبتیں ہیں کہ وہ اس کا تو ذکر ہی نہیں. بہرحال ہمارا ایک علاقہ ہے ناردرن ایریا، جو بالکل ہمالیہ کے قریب ہے، اور وہ خوب اچھا، خوبصورت، حسین ترین مقام ہے جہاں سے دنیا میں سے بہت سے لوگ ناردرن ایریا آتے ہیں تفریح کرنے کے لیے. بہت خوش ہوتے ہیں دیکھ کے. لیکن وہاں کے لوگ میں، جوان لڑکوں میں جو ہیں ابھی 20-25 سال کے ہوئے ہوں گے، تو ان میں ایک چیز پائی جاتی ہے. وہ یہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ سمندر کیا ہوتا ہے. اب کس طرح سے سمجھایا جائے ان کو. تو جب ہم ایک دفعہ گئے تھے تو ہم نے کہا بھائی سمندر کیا ہوتا ہے؟ سمندر بس سمجھانے کا نہیں ہے، دیکھنے کی چیز ہے. کبھی آؤ تو دیکھ لینا. کہنے لگا اچھا جی، کبھی انشاءاللہ ہم آئے تو کہاں ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی کراچی آ جائیں ہم. اچھا کراچی میں؟ میں نے کہا ہاں. تو وہ کراچی میں آئے، اور پھر انہوں نے دیکھا، اور پھر جب بات کی تو آ کے ٹیلی فون پہ انہوں نے ملے، بات ہوئی. میں نے کہا پہنچ گیا آپ کراچی؟ کہنے لگے جی حضور، آپ نے اتنے میں بتایا تھا کہ کراچی جیسا ہے، کراچی ویسا ہے. ابھی تک ہم کراچی میں پہنچے ہیں اور شام ہو گئی، رات ہو گئی. اب صبح جب نکلیں گے تو پھر گھومیں گے پھریں گے، پھر سمندر بھی دیکھنے آئیں گے. میں نے کہا سمندر کو دیکھنے کا وہ جو وقت ہے وہ یا تو بہت سویرے کا ہے، یا پھر جب مغرب ہونے لگتی ہے، سورج غروب ہونے لگتا ہے، اس وقت کا ہے. کیا نا، صبح سویرے تو ہم تھکے ہوئے، دیر میں تھکے ہوئے بہت ہیں. اور پھر انشاءاللہ شام کو ہم جائیں گے، اور جو دیکھیں گے وہ پھر آپ کو ہم بتا دیں گے. ہم اپنے طور پہ جائیں گے، آپ کو کہاں تکلیف دیں. یہ بھی تو اپنے ہی ملک ہے، اپنے ہی شہر ہے، اپنے ہی لوگ ہیں. میں نے کہا بالکل، یہ تو آپ نے صحیح کہا، آپ پہنچ جائیے گا. سب وہ پہنچ گئے. اب انہوں نے جو قصہ ہمیں سنایا، وہ بات جو چیز ہوئی، وہ ہم بالکل ویسے ہی، بالکل کچھ میں بغیر نمک مرچ لگائے، کیونکہ وہ خود بھی خود مزے لا رہے. وہ صاحب دونوں وہاں پہنچ گئے. اب دونوں نے جس وقت پہنچے، وہ وقت تھا جب سورج غروب ہونے والا تھا. کچھ سمندر کے اندر چھپ رہا تھا، کیونکہ سمندر کے کنارے سورج ایسا لگتا ہے جیسے سمندر میں اتر رہا ہو مغرب کے وقت. تو انہوں نے دیکھا تو اپنے دوست سے کہا یہ بتاؤ، یہ سورج جو ہے یہ نکل رہا ہے یا غروب ہو رہا ہے؟ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ غروب ہو رہا ہے یا نکل رہا ہے. دونوں میں جھک چھوڑی. نہیں بھائی یار، نکل گئے، کہاں سے ابھی نکلے گا؟ نکل بہت دیر میں ہوتی ہے، یہ تو غروب ہو رہا ہے. انہوں نے کہا نہیں بھائی، غروب کیسے ہو رہا ہے؟ ابھی تو بہت روشنی بھی ہے، ایک دم غروب ہو جائے گا کیا؟ ڈبکی لگائے گا. ان کو بہت کچھ اپنی عقل دوڑائی، کچھ عجب باتیں کی جو ہم نے سنی بھی، لیکن آپ کو اس میں سے کچھ بتا بھی دی کہ صاحب جھگڑا اس پہ ہو رہا تھا کہ سورج غروب ہو رہا ہے کہ سورج نکل رہا ہے. خیر اسی میں بہت خاصی
बहस हो रही थी, तो एक जो आदमी आया चलता हुआ किनारे पे से घूम रहे थे लोग, उन्होंने इनको देखा और तो ये दोनों लपक के उसके पास गए। वो बेचारा सहम गया कि शायद कुछ छीना छानी करेंगे। उन्होंने कहा साहब घबराइए नहीं, हम तो आपके मुल्क में घूमने फिरने आए, ये बताइए कि ये सूरज इस वक्त जो है वो समंदर के अंदर है, थोड़ा गया है और ये निकल रहा है या उब रहा है। अब उन्होंने इस इशारे से बताया कि यह सब ये निकल रहा है बाहर, दिन हो जाएगा, या ये फिर गुरूब हो रहा है। तो उन्होंने कहा था बात दरअसल है, मैं इस मुल्क में, इस शहर में अभी नया आया हूँ, मुझे को पता है, खुद ही पता नहीं कि सूरज गुरूब कैसे होता है और सूरज तुलू कैसे होता है। वो भी कैसे कहने लगे, आप नॉर्दर्न एरिया से आए हैं क्या? आप कहने लगे जी बस उसी के अजीब करीब से आए हैं, समंदर को देखने का शौक़ हुआ, समंदर देखने आ गए। लेकिन आप माशाल्लाह ज़हीन लोग हैं, जवान हैं, आपको हर चीज़ का पूरा मुकम्मल होना चाहिए। आप थोड़ी देर यहाँ बैठ के इसी मौजू पे गुफ्तगू करेंगे, फिर आपके सामने इसका हल खुदा ही आ जाएगा, किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप देखते रहिए, जिस तरह सूरज गुरूब हो रहा है और जिस तरह से आप कह रहे हैं निकलेगा, तो दोनों चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी कि क्या हुआ। तो साहब वो तो बैठ गए आराम से समंदर के किनारे और सूरज की तरफ टिकटिकी बांधे देख रहे थे। आपकी जगह कि ये क्या हो रहा है, उन्होंने देखा देखते देखते जो कोई देखा वो फिर तो हकीकत तो आप जानते हैं क्या हुआ होगा। तो ये तो एक हकीकत से करीब तर किस्सा था, जिसमें दो शहर के अपने शहर कह लें, गांव के अपने इलाके के आए और यहाँ पे इस वजह से आए कि पूरा पाकिस्तान क्रॉस करके समंदर के किनारे आए। और समंदर के किनारे से आगे जो बहस हुई कि सूरज निकल रहा है या डूब रहा है, या निकल रहा है या वो रूब हो रहा है, इनकी मज़ीद की गुफ्तगू थी। वो इंशाअल्लाह आप अपने प्रोग्राम में खुद सुनेंगे और लोगों को भी सुनाएंगे कि ये सूरज निकलता कैसे है। और कराची वालों ने भी बहुत ने नहीं देखा, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत मंजर होता है साहब सूरज के डूबने का या निकलने का। तो क्या आप देखेंगे, वो तो बहुत सवेरे होता है, वहाँ तक वहाँ पे कोई भी नहीं होता। तो साहब दूसरा किस्सा भी कुछ इसी किस्म का है, लोकल ही है। अपने मजमे में जिस किस्म के लोग रहते हैं हमारे आबादी में, मजमे में नहीं, जो हमारी आबादी में भोले भी होते हैं, नेलिक भी होते हैं, अच्छे लोग हैं। पाकिस्तानी का तो जवाब ही नहीं है, हर जगह पे मौजूद मिलेगा आपको। और इंतहाई मेहनत करने वाले और मुल्क की इज़्ज़त करने वाले, मुल्क के लिए जाने कुर्बान करने में भी दरेक नहीं करते हैं। इसीलिए पाकिस्तानी फ़ौज दुनिया में मशहूर है कि जब अपने मुल्क की दफ़ा के लिए आज़ाद डालते हैं हाथ, तो फिर कोई ताकत उनको हरा नहीं सकती। इंशाअल्लाह यही ऐसा ही होगा। अब दूसरा किस्सा ये है कि अब दूसरा किस्सा भी पाकिस्तानी ही कह लें। अब एक ज़मींदार, बड़े ज़मींदार साहब थे। अब हमारे एक रिवायत है, ज़मींदार जो होता है वो खाली ज़मींदार नहीं होता, वो मेरे ख्याल में उसमें कुछ सियासी शऊर भी आ जाता है। वो कुछ पढ़ा लिखा हो या ना हो, ये तो अभी बाद में पता चलेगा आपको वो, लेकिन वो सियासत में भी एक अपना मुकाम पैदा करते हैं। तो वो एक साहब थे, वो उनको किसी ने कहा कि आपकी शख्सियत में कमी है किसी किस्म की, तो वो आप जो है वो ऐनक लगाएं, आपकी शख्सियत उभर के ऊपर आएगी, और बड़ा अच्छी ऐनक लगाएं, अच्छी जगह से बनवाएं और आप लगाएं, ताकि आपको पता चले कि आप बड़े काबिल हैं, पढ़े लिखे हैं और बड़े रौबदार शख्सियत बन जाती है। तो उनके जहन में बैठ गई और वो सीधे अपने दो आवारियों को जो उनके साथ ही रहते हैं हमेशा, उनको लेके एक ऐनक की दुकान पे गए। उन्होंने पहले से जाके बता दिया कि साहब आए, अभी अंदर आते हैं, उनको ऐनक की ज़रूरत है और अच्छी सी ऐनक इनके लिए निकालिए जो आपके पास बेहतरीन हो, और आके टेस्ट भी कर लीजिए ताकि कोई शुबा भी ना रहे। उन्होंने आए, वो बैठे, उनको बता दिया गया कि ज़मींदार साहब हैं और ये बड़े सियासी आदमी भी हैं और कई दफ़ा मिनिस्टर भी रहे हैं, लेकिन सारी इतनी ज़िंदगी में मसरूफ़ियत गुजारी और इतने बड़े जगह
अपना नाम ही गया, लेकिन भाई पढ़ने में तो बस ही पढ़ते हैं। ये उनको कुछ पढ़ाई में बोलने का शौक था, पढ़ने का नहीं, ना लिखने का। वो किसी का लिखा हुआ बोल देते थे और किसी को कुछ सुनाना होता तो अपनी तरफ से सुना दे। तो कब ऐनक टेस्ट देखा उन्होंने सब कुछ। उसके बाद उन्होंने जो ऐनक वाले दुकान के मालिक थे वो आए, उन्होंने सामने एक चार्ट टांगा, उसमें लफ्ज़ लिखे हुए थे। और उन्होंने एक पर्चा खोला और कहा पढ़ें। तो उन्होंने हटा दिया, तो उन्होंने कहा क्या नज़र नहीं आ रहा? उन्होंने अब क्या कहते कि ये, उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने दूसरा तीसरा, वो हर यही सवाल होता था कि पढ़ें, वो गर्दन हिला देते नहीं। चौथा आखिरी पेज पे एक बहुत बड़ा सा एक्स बना हुआ था। मैं एक बार इतना बड़ा था कि बस उसके बाद टेस्टिंग ख़त्म हो जाती। उन्होंने कहा पढ़ रहे हैं क्या लगा। उन्होंने वो उतारा, अपने कहा से इसको तो रख दो अलग, और वो खुद सामने आ गए जहाँ पे वो लगा हुआ था। और उन्होंने खड़े होके अपना एक हाथ ऊंचा किया, नज़र आ रहा है आपको? कहने लगे हाँ जी पूरा नज़र आ रहा है। दूसरा किया कि नज़र आ रहा है आपको? कहने लगा हाँ पूरा नज़र आ रहा है। फिर उन्होंने कहा कि जनाब सर पे हाथ फेर के, अपने ही सर पे हाथ फेरा, कहा आपको नज़र आ रहा है? उन्होंने फिर भी हाँ कर दी, नहीं नज़र आ रहा। हाँ नहीं, बस वो ऐसे कंफ्यूज थे, वो ना ज़्यादा बोल रहे थे और बोलते नहीं। हाँ कैसे बोलते? अगर बोलते थे हाँ तो बताना पड़ता है ये एक्स है कि वाई है या जेड है। उन्होंने कुछ नहीं। साहब वो बड़े परेशान हो गए कि साहब ये आँखें तो इनकी सही हैं, नज़र तो इनको आता है, लेकिन तो उन्होंने आके ख्याल अंदाज में पूछा सर आपको वाकई नज़र है आ रहा था जो मैं चीज़ें दिखा रहा था? कहने लगे हाँ अच्छा नज़र आ रहा था, बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था। तो आपने पढ़ा क्यों नहीं? उन्होंने कान करीब लाके कहा पढ़े लिखे होते तो तुम्हारे पास आते। अरे कहीं नौकरी कर रहे होते। जमींदारी पढ़े लिखे नहीं करते, लीडरी पढ़े लिखे नहीं करते। उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल बेशक, आप कल इन आदमियों को भेज दीजिएगा, अब बिल और न के आप इनके दे देंगे। क्या कल क्या? अभी हम बैठे हुए हैं, अभी आप एक बना दीजिए। उन्होंने कहा इतना बड़ा ग्राहक आ गया। उन्होंने कहा जी आप तशरीफ़ रखिए। उधर इशारा किया, वो चाय वाय लेके आ गए और उन्होंने चाय पी और अपनी ऐनक लगा के पूछा ऐनक वाले से अब हम कैसे लग रहे हैं? वो तो मार ही हो जाते हैं आदमियों से मिल। उन्होंने कहा कैसे क्या लग रहे हैं? आप तो किसी कॉलेज के प्रिंसिपल लग रहे हैं। ओह वो तो खुश हो गए। उन्होंने एक बड़ी तारीफ़ें की उनके काम की और पैसे भी कुछ उन्होंने जो आदमी आए थे उनको भी दिए और वो अपनी PhD की डिग्री लेके चले गए। तो साहब ये भी एक हकीकत है। उनकी बात जो एक उन्होंने कहते अगर पढ़े लिखे होते तो तुम्हारी चाहे दुकान पे होते किसी। उन्होंने कहा सर सही कह रहे हैं, लीडरी नहीं करते, जिम्मेदारी नहीं करते। उन्होंने कहा जिम्मेदार भी हैं, लीडर भी हैं, तो फिर इनको पढ़ने की क्या ज़रूरत? पढ़े लिखे इनके आगे पीछे। तो आप इंशाल्लाह मुस्कुराने की कोशिश कीजिएगा, अच्छी बातें सोचिएगा और ये सोचिएगा कि बड़ी मेहनत से प्रोग्राम होते हैं, सोचते हैं समझते हैं और फिर आपकी का ख्याल करते हैं कि आपकी अब मुझे कुछ ये भी फिक्र होने लगी कि कहीं ज़्यादा हैवी रोज तो नहीं हो जाता कि समझ में ही नहीं आया, जो मुस्कुराए नहीं या सब कुछ कोई। खैर अल्लाह माफ़। इजाज़त दीजिए नसीम दुरानी को। इंशाअल्लाह अगली दफ़ा फिर कोशिश करेंगे आपको हंसाने की, मुस्कुराने की। हम छोड़ेंगे नहीं जब तक आप मुस्कुराएंगे नहीं। एक दफ़ा सब मुस्कुरा देंगे तो हम कहेंगे हमारा काम ख़त्म हो गया। ये तो बड़ी अच्छी बात है। एक साहब ने कहा कि मियाँ सब मुस्कुरा देंगे तो तुम क्या करोगे? हमने कहा हम कुछ नहीं करेंगे। चलिए जी, अल्लाह हाफिज़। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी।